So let us go ahead with the first lecture with starting of syllabus. First lecture on universal human values. Okay, so we will go ahead with our first chapter. So what are the contents of our first chapter? What we are going to study? So under first chapter, we are going to study introduction, then need for value education, basic guidelines, content of value education, and process for value education. This part we are going to see in our first chapter. Okay, so before that, prior to that, we have studied syllabus, etc. Do you remember it? So where did I say UHV first lecture? So do you remember this? We have studied this part, introduction to teacher. I guess you have written down. मी तुम्हाला सांगितलं होतं, लिहून दिलं होतं, तुम्ही लिहिलेलं असेल कदाचित. लिहिलंय का? Have you written it? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, very good. Then syllabus, have you written? Syllabus? I told you that your CC had shared one copy. From that copy, you copy in your notebook. तुम्हाला ते सांगितलं होतं, तुम्ही लिहिलंय का ते? Syllabus, etc. Okay, I guess No, sir. 90% of people. No, sir. Okay, you are not written. So what I will do first now, I will tell you what to do and how to do. So very first you have written down introduction to teacher. Firstly, you have written your name, your roll number. Then you have written introduction to teacher. Now, next you write down syllabus. Okay, in your notebook. The first page will contain introduction to teacher. Second page will start with the syllabus. So under syllabus, first you should start with course outcomes. Then section 1. Rather section we don't have in our syllabus. So syllabus you have to write in detail. In detail syllabus, there are two ways. First way, you can take screenshot from here or you can take a copy. आता त्याची कॉपी सरांनी टाकलेली होती आपल्या चॅनलवरती. मी परत एकदा त्याची कॉपी आपल्या सिलेबसची कॉपी चॅनलवरती शेअर करतो. तुम्ही ती बघून लिहा. हा सिलेबस आपण डिस्कस केलेला आहे. वी हॅव डिस्कस्ड दिस कंप्लीट सिलेबस इफ आय एम नॉट रॉंग. बरोबर आहे ना? आपलं डिस्कशन झालंय सिलेबस वरती, बरोबर? Okay, so we have only 4 chapters. So all the 4 chapters we have studied. The syllabus we have studied. So what you need to do now, हे जे काही एवढं सगळं आहे हे सगळं तुम्हाला लिहायचं आहे. किंवा मग सरळ मी हेच तुम्हाला टाकतो, पीपीटीच टाकतो हा तुम्हाला. हा जो पीपीटी आहे पहिला, हा अख्खा पीपीटी आपल्या चॅनलवरती टाकतो. याच्यामधून तुम्ही हे सगळं लिहू शकता. इंट्रोडक्शन टू टीचर आहे, स्ट्रक्चर आहे, कोर्स आउटकम्स आहेत, सिलेबस आहे, सगळंच याच्यामध्ये आहे. हे पण टाकून देतो. Getting it? So today we will be starting without wasting our time. We will continue with our first chapter, that is course introduction, need, basic guidelines, content and process for value education. This is our chapter name. Clear? So chapter name is too big. है ना, मोठा चॅप्टरचं नाव आहे, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट. आपल्याला काही चॅप्टरचं नाव पाठ करायचं नाहीये. आपल्याला फक्त काय करायचं आहे की त्याचा व्हॉट इज इट्स इम्पॉर्टन्स, दॅट वी नीड टू सी. Okay, course introduction, need, basic guidelines, content and process for value education. This is the part we are going to study now. So will come back to our today's PPT. Okay, these are the points under the syllabus: introduction, need for value education, basic guidelines, content and process for value education. See, one more thing I want to clear, yet the question paper pattern is not finalized. मुझे मतलब क्या, सॉरी आई वाज इन मराठी, मतलब क्या है कि इस सब्जेक्ट की एग्जाम कैसे होगी ये अभी तक डिफाइन नहीं है. सो इसलिए मैं ये नहीं बता पा रहा कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कौन से बिट पे आएंगे, क्या पूछा जाएगा ना, दैट इज नॉट क्लियर येट. सो दैट इज हाउ वी विल सिंपली स्टडी द सिलेबस. And then as soon as question paper pattern will be decided by university, we will study this in detail in respect of question answers. So we'll see. These are the contents: introduction, need for value education, basic guidelines, content for value education, process for value education. So what is value education? ये value education है क्या और वो हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है?
क्या है वैल्यू एजुकेशन, व्हाट इट इज? कैन एनीवन, आपके दिमाग में इसका कुछ आइडिया आ रहा है क्या? क्या हो सकता है ये वैल्यू एजुकेशन? क्या हो सकता है? एजुकेशन के बेनिफिट्स। एजुकेशन के बेनिफिट्स, ओके करेक्ट। नेक्स्ट, एजुकेशन के बेनिफिट्स, नेक्स्ट Importance बोलिए। of education. हम्म, Importance of education. इम्पोर्टेंस ऑफ Importance. इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, करेक्ट। ओके, क्या होता है ना, हम एजुकेशन क्यों लेते हैं, पहले ये बात पे ध्यान देंगे। वाई वी स्टडी, वाई वी टेक एडमिशन टू इंजीनियरिंग, वाई यू कंप्लीटेड 12th स्टैंडर्ड, क्यों हमने 10वीं तक पढ़ाई की, एसएससी क्यों किया, एचएससी क्यों किया, इंजीनियरिंग को एडमिशन क्यों लिया? अरे ठीक है भाई, मैंने तो इंजीनियरिंग को लिया, मेरे दोस्त ने मेडिकल को लिया, एमबीबीएस कर रहा है, वो एमबीबीएस क्यों कर रहा है? अरे उसने तो एमबीए किया है, इंजीनियरिंग करने के बाद उसने एमबीए किया। क्यों कर रहे हैं ये एजुकेशन, क्यों ले रहे हैं? why we are taking education? Let us will first answer this question. Education हम क्यों ले रहे हैं? Why? Can anyone answer this? For stable life. For They give lots of stable life. for stable life. They give lots of knowledge. स्टेबल लाइफ, For ओके। better future. पहले हम क्या करते हैं ना, इस स्टेबल लाइफ पे हम सब पहले पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं। एक ने कहा स्टेबल लाइफ, दूसरे ने क्या कहा? लॉट ऑफ For better नॉलेज, future. Lots of knowledge. ओके। हाँ, और किसी का आंसर? For better future. बेटर फ्यूचर। इस सब के लिए हम क्या कर रहे हैं? एजुकेशन ले रहे हैं। कंफर्टेबल एंड स्टैंडर्ड लाइफ, करेक्ट, यस, ओके, वेरी गुड। अब बस हुआ है ना, कंफर्ट एंड स्टैंडर्ड। अब देखिए, स्टेबल लाइफ, स्टेबल लाइफ या फिर नॉलेज या फिर बेटर फ्यूचर या फिर कंफर्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये एजुकेशन से मिलेगा क्या? ये एजुकेशन से मिलेगा क्या? नहीं। Yes, sir. एजुकेशन इज वन स्टेप, लेकिन ये जो है ना, ये एक प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रोसेस है। स्टेबल लाइफ ये सिर्फ एजुकेशन से नहीं मिलेगा। लॉट ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज जो मिलने वाला है ये मिल सकेगा, करेक्ट, ये मिलेगा। एजुकेशन से ये मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, लेकिन लॉट ऑफ ये पता नहीं। लॉट ऑफ के लिए सिर्फ एजुकेशन, ओनली एजुकेशन इज सफिशिएंट और नॉट, दैट वी डोंट नो। बेटर फ्यूचर सिर्फ एजुकेशन से मिलेगा क्या? नहीं, इट इज अ प्रोसेस। कंफर्ट एंड स्टैंडर्ड लाइफ, नो, इट इज प्रोसेस। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस की पहली स्टेप है एजुकेशन। गेटिंग इट? जो हम सक्सेसफुल लाइफ बोलते हैं ना, ये सभी सक्सेसफुल लाइफ के पैरामीटर्स हैं। स्टेबल लाइफ, बेटर फ्यूचर, कंफर्ट एंड स्टैंडर्ड लाइफ, ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो है, ये सक्सेसफुल लाइफ के कंपोनेंट्स है। जिसे हम कहते हैं कि यार ये तो लाइफ में सक्सेसफुल है ना, वो आदमी है ना, पर्टिकुलर एक्स पर्सनैलिटी, ही इज सक्सेसफुल इन हिज लाइफ, है ना। वो सक्सेसफुल लाइफ के ये जो है, ये स्टेप्स है, ये पार्ट्स है उसके, स्टेबल लाइफ, बेटर फ्यूचर, कंफर्ट एंड स्टैंडर्ड लाइफ। और ये जो है वो एक लंबी प्रोसेस है, और इस प्रोसेस का सबसे पहला पड़ाव है एजुकेशन। सबसे पहला पड़ाव होता है एजुकेशन। और इस एजुकेशन में दो प्रकार हम करेंगे। जनरली बहुत सारे होते हैं, है ना, तो हम फोकस करेंगे एजुकेशन के दो प्रकार में। हम एजुकेशन को 2 टाइप्स में स्प्लिट करेंगे। वी विल स्प्लिट एजुकेशन इन 2 टाइप्स। पहला टाइप कहेंगे स्किल बेस्ड, और दूसरा टाइप होगा वैल्यू बेस्ड। अब ये क्या है सर, ये कहाँ के टाइप आ गए? हमने तो एजुकेशन के टाइप देखे, साइंस होता है, आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है। नहीं, अब ये 2 प्रकार है, स्किल बेस्ड, वैल्यू बेस्ड।
अगर हम हमारी करंट एजुकेशन सिस्टम देखें तो करंट एजुकेशन सिस्टम में ये स्किल बेस्ड सीख रहे हैं हम. वी आर स्टडिंग एवरीथिंग स्किल बेस्ड. आपके जो अप्लाइड मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हो, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप बेसिक्स ऑफ सिविल पढ़ रहे हो, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल पढ़ रहे हो, वो सभी क्या है? वो सभी स्किल बेस्ड है. आर्ट्स में कोई गाना सीखता है ना, कोई हारमोनियम बजाना सीखता है, कोई तंबूरा बजाना सीखता है. व्हाट इज दैट? स्किल बेस्ड. ये स्किल बेस आपको क्या देता है? स्किल बेस आपको देता है मनी. स्किल बेस विल गिव यू मनी. लेकिन इस पैसे का क्या करना है, ये कौन सिखाएगा? ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिखाएगा. गेटिंग इट? स्किल बेस्ड एजुकेशन आपको क्या देगा? आपको पैसे देगा, आपको शोहरत देगा, और उस पैसे को, उस शोहरत को कैसे एंजॉय करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, ये कौन सिखाएगा? ये वैल्यू एजुकेशन सिखाएगा. सो व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन? Value education, it is the type of education which will tell you how to live a happy life, a prosperous life. देखिए ना, बहुत बार होता है ना, किसी के पास 1 करोड़ रुपए हो तो वो 1 करोड़ को 10 करोड़ करने की सोचता है, किसी के पास 10 करोड़ हो तो 10 करोड़ का 100 करोड़ करने की सोचता है, लेकिन उस 10 करोड़ को वो एंजॉय नहीं कर पाता, उस 10 करोड़ का वो सुख नहीं ले पाता है. गेटिंग इट? सो वो सुख कैसे ले, वो उस बात को एंजॉय कैसे करे, ये सिखाएगा वैल्यू एजुकेशन. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यू एजुकेशन इनिशियल पार्ट. हम इन डिटेल जाएंगे, अभी इसके डिटेल्स में हम जाएंगे. मैंने जस्ट आपको एक हाई लेवल, ऊपरी उसका एक नॉलेज, ऊपरी उसका इंफॉर्मेशन बताया कि ऊपरी इंफॉर्मेशन, देख लो, हाई लेवल इंफॉर्मेशन. दिस हाई लेवल इंफॉर्मेशन इज एजुकेशन के 2 प्रकार होंगे, एक स्किल बेस्ड होगा, एक वैल्यू बेस्ड होगा. स्किल बेस्ड आपको पैसा देगा, शोहरत देगा. वैल्यू बेस्ड आपको बताएगा कि वो पैसा, वो शोहरत कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है. ठीक है? चलो, गो टू नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस, जो अभी आपने बताया है ना. तो क्या क्या हो सकता है? मुझे हैप्पी होना है तो मुझे क्या क्या चाहिए? कब हैप्पी होऊंगा मैं? अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं तो मैं हैप्पी होऊंगा. गेटिंग इट? अरे मेरे पास बहुत अच्छी कार है, BMW है यार, फरारी भी है, 2 तो फरारी है, एक BMW है, 2-4 मर्सिडीज भी होंगी, तो बहुत खुश है यार. स्मार्टफोन्स है ना, अभी मेरे एक दोस्त ने खरीदा Z2, सैमसंग Z2 1.5 लाख. वो स्मार्टफोन्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, है ना, किसका चाहिए? अरमानी चाहिए, अरमानी सूट चाहिए, ब्यूटीफुल हाउस. ये तो सबका ड्रीम होता है ना. सबको एक बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत बहुत बड़ा घर चाहिए, है ना. कुछ तो एक शेर था यार गाइस, मैं भूल गया. उसका मोरल बताता हूँ. उस शेर का मोरल क्या था? आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द शेर. क्या था वो कि घर चाहे कितना भी बड़ा हो, उसमें हमेशा एक कमरा कम ही रहता है. घर चाहे कितना भी बड़ा हो, उसमें हमेशा एक कमरा कम ही रहता है. मतलब हमारे पास कितना भी बड़ा घर हो, हमें लगता है यार एक रूम और चाहिए थी, तो मैं उस रूम का ये यूटिलाइजेशन करता, है ना. सो दिस इज हाउ ब्यूटीफुल हाउस, हर एक का ख्वाब, एवरी ह्यूमन बीइंग्स दिस. ये होता है ना. और कुछ होता है क्या? और भी बहुत कुछ होगा ना. हर एक के बहुत सारे सपने होंगे, क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या नहीं. मनी है, व्हीकल है, स्मार्टफोन है, ब्रांडेड क्लोथ्स है, ब्यूटीफुल हाउस है, और कुछ, और कुछ, लवासा सिटी में एक घर हो, और वो पता है DS कुलकर्णी का ख्वाब क्या था? DS के ग्रुप, पता है DS कुलकर्णी, सुना है कभी? कौन था? टोयोटा ओनर. हाँ, नहीं नहीं नहीं, टोयोटा ओनर नहीं था. वो था टोयोटा का डीलर.
सबसे पहले उसने जो बिजनेस में बहुत बड़ी छलांग लगाई वो टोयोटा की डीलरशिप लेके, लेकिन वो एक्चुअली क्या था, वो रियल एस्टेट वाला था, रियल एस्टेट में था, उसका बहुत बड़ा शेयर था, रियल एस्टेट पर्सन बहुत बहुत बड़ा था रियल एस्टेट में। मुंबई में, पूना में उसके बहुत बहुत बड़े प्लांट्स चल रहे थे, गेटिंग इट। लेकिन वो अभी जेल के पीछे है। हाँ, वो बातें अलग है, छोड़ दीजिए उसके बारे में। लेकिन उसका ख्वाब मैं बताता हूँ, डीएस कुलकर्णी का ख्वाब क्या था। उसका ख्वाब था, ही वांटेड टू बिल्ड ए सोसाइटी इन न्यूयॉर्क। अरे यार, स्पेलिंग क्या कर दिया मैंने। उसका ख्वाब क्या था, वो रियल एस्टेट वाला था ना, तो वो हाउसिंग सोसाइटीज बनाता था। पूना में बना दी, मुंबई में बना दी, बैंगलोर में बना दी, चेन्नई में बना दी, बहुत सारी साइट्स थी उसकी, कंस्ट्रक्शन साइट्स। लेकिन उसका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था, उसे न्यूयॉर्क में एक सोसाइटी बनानी थी, है ना। न्यूयॉर्क में उसे एक अपार्टमेंट खड़ा करना था, वो उसका ड्रीम था, है ना। उससे उसे खुशी खुशी मिलने वाली थी। इट वॉज हिज ड्रीम। सो हर एक का कोई ड्रीम होता है यार, हैप्पी लाइफ के लिए। तो वो है क्या, ये सारी बातें आपको हैप्पीनेस देंगी क्या? अगर उसने न्यूयॉर्क में एक सोसाइटी बना दी होती तो क्या वो हैप्पी हो जाता? अब देखिए मैंने क्या कहा, इंडिया के हर एक मेजर सिटी में, उसके अपार्टमेंट्स है, बहुत बहुत बड़े अपार्टमेंट्स है उसके नाम पे। अगर वो न्यूयॉर्क में भी एक अपार्टमेंट बना देता तो वो क्या हैप्पी हो जाता? आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए, व्हीकल आ गई, स्मार्टफोन, ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्यूटीफुल हाउस आ गया, ये सब, तो आप हैप्पी हो गए क्या? देखते हैं यार लैपटॉप क्या कहता है। तो पीसी कहता है नो, नहीं, इन चीजों से कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। हैप्पीनेस मिलेगा, लेकिन किस किस हद तक? जस्ट फॉर अ शॉर्ट इंस्टेंस, थोड़े दिन के लिए। अगर मैंने नया घर लिया तो वो घर की खुशी कितनी होगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल, खत्म। स्मार्टफोन, अरे यार स्मार्टफोन तो 6 महीने से ज्यादा टिकता ही नहीं, मैक्सिमम 1 साल, खत्म। व्हीकल्स के लिए तो गवर्नमेंट ने ही नॉर्म बना दिया, 15 साल के बाद उसको आपको स्क्रैप ही करना पड़ेगा। क्या है, पैसा आ जाता है, कल चला जाता है, हु नोज, इट विल स्टे विथ यू। No, these things will not give you the happiness. No, these are the material things. ये सब materials है, ये आपको खुशी नहीं देंगी। खुशी देंगी, लेकिन ये आपको कंटिन्यूड खुशी नहीं देंगी, हमेशा के लिए आपको खुश नहीं रख पाएंगी। सो क्या चाहिए उसके लिए? डीएस के ही रह रहा है। उसके लिए चाहिए वैल्यू और एजुकेशन का संगम। मतलब क्या? सर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब क्या? सो देखते हैं। वैल्यू, सो वैल्यू क्या है? जो अभी हमने कहा, वैल्यू प्लस एजुकेशन। वैल्यू समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, वर्दी है, मतलब कीमती है, और यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, दैट गिव्स द फीलिंग ऑफ, किसकी फीलिंग चाहिए? द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, वो है वैल्यू। प्रॉस्पैरिटी, भरभराट, है ना, प्रॉस्पैरिटी, ग्रोथ, कंटिन्यूअस ग्रोथ, है ना, कंटिन्यूड ग्रोथ, दैट इज प्रॉस्पैरिटी। ये दोनों चाहिए, ये दोनों का नॉलेज, ये दोनों किससे मिलेंगे? व्हाट विल गिव यू दीज टू? नोइंग दैट थिंग मीन्स नोइंग द वैल्यूज। क्लियर? और एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, लर्निंग स्किल्स एंड नॉलेज। एजुकेशन इज द मीन्स टू इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन में क्या आएगा एजुकेशन से? एजुकेशन से आएगा नॉलेज, एजुकेशन से आएगा स्किल, है ना। हमारे किसी तो पार्टिसिपेंट ने अभी बताया था कि एजुकेशन क्यों जरूरी है, तो एजुकेशन जरूरी है नॉलेज के लिए, उन्होंने कहा था, है ना। हमने लिखे थे 3 पॉइंट्स, कुछ 3-4 पॉइंट्स लिखे थे, उसमें किसी ने तो नॉलेज कहा था। यस, एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर नॉलेज। और मैंने कहा था कि एजुकेशन किसके लिए जरूरी है? स्किल्स। एजुकेशन क्या देता है? स्किल्स।
गेटिंग इट? स्किल्स इन ह्यूमन बीइंग, हमें स्किल्स इम्पार्ट करने के लिए एजुकेशन है। अब यहां पे एक्चुअल शुरू होता है, जस्ट वेट। इंट्रोडक्शन। सो अभी इस सब्जेक्ट का, अभी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, द सब्जेक्ट विच इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस इज कॉल्ड एज वैल्यू एजुकेशन, है ना। ये सब्जेक्ट हमें क्या बताएगा कि हमें, अगर ह्यूमन, हमें मतलब वी द ह्यूमन बीइंग्स, हमें हैप्पीनेस के लिए क्या जरूरी है, व्हाट इज वैल्यूएबल, जरूरी क्या है और क्या जरूरी नहीं है। जैसे कि हमने अभी देखा, सिर्फ कार होना, सिर्फ अच्छा फोन होना, सिर्फ ब्रांडेड क्लोथ्स होना आपको हैप्पीनेस नहीं देगा, है ना। दैट इज रिक्वायर्ड, आई एम नॉट डिनाइंग इट, दैट इज रिक्वायर्ड, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। दैट इज रिक्वायर्ड बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। जैसे कि खाना होता है ना, हम खाना खाते हैं, सो खाने में नमक जरूरी होता है, गेटिंग, खाने में नमक जरूरी होता है, लेकिन नमक खाना नहीं होता, गेटिंग इट। खाने में नमक जरूरी है लेकिन नमक खाना नहीं होता, वो सिर्फ एक पिंच चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, गेटिंग इट। सो ऊपर वाली वो सभी बातें, पैसे, है ना, फिर क्या, ब्रांडेड क्लोथ्स, है ना, कार, गाड़ी, बंगला, घर, वो सब कितनी चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी, उतना ही चाहिए, just like a pinch of salt in our food. So value education enables us to understand our needs and visualize our goals correctly and also indicate the direction of their fulfillment. ये पॉइंट हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी ये पॉइंट पे हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। वैल्यू एजुकेशन इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड अवर नीड्स। वैल्यू एजुकेशन क्या करेगा, वो हमारी नीड्स हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। विजुअलाइज अवर गोल्स करेक्टली, हमारे गोल्स हमें करेक्टली विजुअलाइज करने में मदद करेगा। डायरेक्शन ऑफ देयर फुलफिलमेंट, वो कैसे अचीव कर सकते हैं हम, वो भी हमें वो ये बताएगा वैल्यू एजुकेशन। All the human being continuously aspire for happy life, a fulfilling and successful life, and the purpose of education is to provide adequate competence to actualize this aspiration. So what education does, education provides you the adequate competence. एडिक्वेट का मतलब क्या है, एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट, एडिक्वेट का मीनिंग होगा सफिशिएंट। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मीनिंग क्या होगा, कॉम्पिटेंस कोई बता सकता है, कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस को हम कह सकते हैं क्षमता, करेंगे, क्षमता, तुम्हारी क्षमता कितनी है, सो कॉम्पिटेंस दैट इज क्षमता। एजुकेशन क्या करता है, वो हमें एडिक्वेट कॉम्पिटेंस देता है, जरूरी, जितनी जरूरी है उतनी क्षमता हमें वो देता है, ताकि हम अपना गोल, अपने सक्सेसफुल लाइफ अचीव कर सके, गेटिंग इट, दैट इज द एजुकेशन, दैट एजुकेशन डज। नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन की जरूरत क्या है, हम ऐसा नहीं पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, ये कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं हम, ओके। वरना कहोगे यार ये सर वैदिक में कहा लेके जा रहे हैं। नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज वैल्यू एजुकेशन विल हेल्प अस फॉर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशन। एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का मतलब बताया था मैंने, आकांक्षा। यस, आकांक्षा, हिंदी में भी इसे आकांक्षा ही कहते हैं, मैंने देखा, ठीक है। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशन, हमारी आकांक्षा क्या है उसका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन हमें कौन करेगा, वैल्यू एजुकेशन कराएगा। अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज टू फुलफिल आवर एस्पिरेशन इन कंटिन्यूटी, हमारी एस्पिरेशन फुलफिल करना है, लेकिन कैसे, इन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस फैशन, कंटिन्यूटी में करना चाहिए वो। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वैल्यू एंड स्किल्स, मतलब वैल्यू और स्किल्स दोनों साथ में जाने चाहिए, गेटिंग इट, वैल्यू एंड स्किल्स बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ में जाने चाहिए, दोनों पैरेलल जाने चाहिए, एक दूसरे को वो पैरेलल रहने चाहिए। इवैल्यूएशन आवर बिलीफ, हमारे बिलीफ क्या है ना, हम बिलीव करते हैं कि
क्या बिलीव करते हैं कि बाबा हाँ ठीक है, अगर हम सच बोलेंगे हमेशा तो हमारा अच्छा ही होगा, दिस इज अवर बिलीफ। अगर हम सच बोलेंगे तो हमारा अच्छा ही होगा, ये हमारा बिलीफ है। लेकिन उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? ये बिलीफ है यार, ये मेरा बिलीफ है, लेकिन उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? हाउ यू विल इवैल्यूएट दैट कि यस होता ही है, अगर मैं सच बोलूंगा तो मेरा अच्छा ही होगा, इसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? दिस इज दिस विल बी टॉट बाय वैल्यू एजुकेशन। ये वैल्यू एजुकेशन हमें बताएगा कि हमारे बिलीफ को इवैल्यूएट कैसे करें और इवैल्यूएशन करने के बाद उन्हें कैसे एक्सेप्ट करें, है ना। हम बहुत सारी चीजों पे बिलीव करते हैं, लेकिन हमें कैसे करना चाहिए? उन बिलीव्स को पहले क्या करना चाहिए? इवैल्यूएट करना चाहिए, इवैल्यूएट करने के बाद एक्सेप्ट करना चाहिए। सो वो कैसे इवैल्यूएट करें वो हमें बताएगा वैल्यू एजुकेशन। टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यू, है ना, ये टेक्नोलॉजी और ह्यूमन वैल्यू का संबंध क्या है और कैसे संबंध जोड़ना चाहिए, ये भी हमें कौन बताएगा? वैल्यू एजुकेशन बताएगा। दस वैल्यू एजुकेशन इनेबल अस to understand our needs and visualize our goals correctly and also indicate direction of their fulfillment। ये सेंटेंस फिर से आ गया, ये हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था। चलो आगे बढ़ते, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया। वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन enables us to be in harmony within ourselves। अब ये हार्मोनी का मतलब क्या है ये भी बताया था, है ना, डिस्कस हुआ था। ये हार्मोनी का मतलब हार्मोनी का मतलब सुसंवाद। 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 सुसंवाद और ताल में, है ना, एक ताल, दोनों की एक ताल होनी चाहिए, है ना। हम कहते हैं ना यार मेरे और उसके विचार बहुत मिलते हैं, मेरे और महात्मा गांधी के विचार बहुत मिलते हैं, मेरे और भगत सिंह के विचार बहुत मिलते हैं ना, तो हमारे विचारों में क्या है? हार्मोनी है। गेटिंग इट? सो वैल्यू एजुकेशन इनेबल्स अस टू बी इन हार्मोनी, हमें हार्मोनी में सिखाता है। और किस किन चीजों में हार्मोनी? विद इन आवर सेल्फ, खुद में। खुद में मतलब क्या? हमारा मन और हमारा दिमाग, इन दोनों के विचारों के बीच में प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए, उनमें क्या चाहिए? हार्मनी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। जो मेरा दिल सोचेगा वो मेरे दिमाग को एक्सेप्ट करना होगा, और जो मेरा दिमाग डिसीजन लेगा वो मेरे दिल ने एक्सेप्ट करना चाहिए। दिस इज हार्मोनी विद इन आवर सेल्फ। नहीं तो कभी कभी होता है ना कि यार दिमाग कैलकुलेशन तो बोलता है कि यार ये करना चाहिए, लेकिन दिल बोलता है नहीं यार ये मत करो, है ना। सपोज कोई दोस्त है हमारा, वो दोस्त पैसे मांगने आ रहा है, यार 10,000 दे दे मुझे जरूरत है, तो हमारा दिल कहता है कि यार दोस्त है अपना, दे दो 10,000, क्या है उसमें बड़ी बात। और दिमाग क्या कैलकुलेट करके कहता है? यार 10,000 मत दे, तुझे जरूरत हो सकती है 10,000 की, यार तू ये 10,000 शेयर मार्केट में डालेगा, बैंक में डालेगा, तुझे इंटरेस्ट मिलेगा, उसको देने से क्या तुझे मिलेगा? ये दिमाग और दिल का बीच का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो वैल्यू एजुकेशन क्या बताएगा? नहीं यार ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चाहिए, तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग दोनों एक साथ जाने चाहिए, है ना। दे शुड टेक अ सिंगल डिसीजन। क्लियर? दिस विल बी टॉट बाय वैल्यू एजुकेशन, ये हार्मोनी में। नेक्स्ट, विथ अदर ह्यूमन बीइंग्स, हम और हमारे दोस्त, हम और हमारा परिवार, हम और हमारे आजू बाजू वाले लोग, सोसाइटी, इन सब के साथ हार्मोनी में रहना चाहिए, हमारे विचार मिलने चाहिए। देखिए ना, हम विविधता में एकता हमारा देश कहलाता है ना। वी द इंडियंस है ना, बिलीव इन विविधता में एकता। हमारे बहुत सारी संस्कृतियां हैं, हमारे बहुत सारे कल्चर्स हैं, लेकिन उन सभी में क्या है ना, उन सभी में एक तरह की हार्मनी है, हम प्यार से रहते हैं। दिस इज व्हाट हार्मनी विद अदर ह्यूमन बीइंग। और तीसरा लास्ट है हार्मनी विद रेस्ट ऑफ नेचर एज लार्ज, नेचर के साथ। सो नेचर में क्या क्या होता है? व्हाट नेचर काउंट्स? पेड़ आएंगे, पर्वत आएंगे, नदियां आएंगी, पानी आएगा, हवा आएगा, ये सब के साथ हार्मोनी में रहना चाहिए। अरे यार डिस्टर्बिंग, कौन है वो बैकग्राउंड नॉइज वाला? कोड़ी कोड़ी, मिस्टर खंडू कोड़ी। खंडू को म्यूट कर दिया मैंने। ओके चलो नेक्स्ट,
सो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एजुकेशन, एजुकेशन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हम देखने वाले हैं, है ना। एजुकेशन से क्या हमें एक्सपेक्टेशंस है, जो हमें सबसे लेक्चर की शुरुआती में हमने डिस्कस किया था, है ना। एजुकेशन से हमें क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो आपने बताया था हैप्पी लाइफ, है ना, फिर क्या बोला था, ग्रोथ बोला था, स्टेबल लाइफ बोला था, किसी ने एजुकेशन बोला था। तो ये एजुकेशन शुड प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। एजुकेशन हमें दो बातें सिखाएगा। एजुकेशन मस्ट टीच अस दीज टू थिंग्स, व्हाट टू डू and how to do. Education will teach us these two things, what to do and how to do. Clear? What to do means ये क्या है, इसका मतलब क्या है, what to do for getting happy life. For getting what happy life, what should I do? What should I do so that I will get a happy life? What should I do so that I will get a prosperous life? What should I do so that I will get a stable life? ये कौन सिखाएगा? एजुकेशन। और दूसरी बात क्या है? हाउ टू डू, मुझे क्या करना है पता चल गया। सपोज लेट अस से मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, आई नीड 1 करोड़ रुपीज, मेरे अकाउंट में 1 CR चाहिए। तो एजुकेशन आपको क्या सिखाएगा? हाउ टू, हाउ टू। सो ये हाउ टू कौन बताएगा? ये बताएगा स्किल बेस्ड। स्किल बेस्ड एजुकेशन आपको बताएगा हाउ टू डू दैट। वो आप कैसे माने, 1 करोड़ रुपए चाहिए, वो आप कैसे पा सकते हैं, हाउ यू कैन अचीव 1 CR। और व्हाट टू डू ये कौन बताएगा? ये बताएगा वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन आपको बताएगा कि यस बाबा रे, तुझे 1 करोड़ मिलेंगे तो तू खुश होगा क्या? सॉरी, तुझे 10 करोड़ मिलेंगे तू खुश होगा क्या? तुझे बंगला मिलेगा, तुझे घर मिलेगा, तू खुश होगा क्या? ये कौन बताएगा? ये बताएगा वैल्यू एजुकेशन। गेटिंग इट? सो व्हाट टू डू विल बी टॉट बाय वैल्यू एजुकेशन एंड हाउ टू डू विल बी टॉट बाय द स्किल बेस्ड एजुकेशन। Then are both required or we can do with just one of them? अभी ये आप मुझे बताओ, अगर इन दोनों में से एक बात नहीं होगी, अगर मुझे पता नहीं होगा कि what to do, तो इसका उपयोग है क्या? इसका उपयोग है क्या? सपोज मुझे पता है गाना कैसे अच्छे गाना है, मुझे गाना गाना आता है, आई नो दैट स्किल, आई हैव दैट स्किल वेरी स्ट्रांगली, बट आई डोंट नो, वो गाना गा के क्या करना है। मुझे वो गाना पैसे कमाने के लिए गाना है, वो गाना मुझे खुद को सेटिस्फाई करने के लिए गाना है, वो गाना मुझे औरों को सेटिस्फाई करने के लिए गाना है। अगर ये ही मुझे पता नहीं तो उस स्किल का यूटिलाइजेशन क्या है? व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट स्किल देन? फर्स्ट आई शुड डिसाइड व्हाई शुड आई सिंग, क्यों क्यों गाना गाना है, फॉर माई सेल्फ और फॉर अदर्स और फॉर मनी, और उसके बाद हाउ टू डू। सो सिर्फ स्किल होके उपयोग नहीं है, वो स्किल से हमें क्या पाना है, व्हाट यू वांट टू अचीव यूजिंग दैट स्किल, दैट इज आल्सो मस्ट। और दूसरी बात, सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास मुझे पता है व्हाट आई वांट, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। सपोज मुझे 1 करोड़ चाहिए, है ना, मैं तो हर टाइम वही यूज करूंगा क्योंकि मुझे तो 1 करोड़ चाहिए यार। सो अगर मुझे पता है कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, आई वॉन्ट 1 CR, दिस इज व्हाट आई नो व्हाट टू डू। लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कैसे कमाने हैं, तो उसका क्या यूज है, मुझे कुछ आता ही नहीं, है ना, मैंने आज तक पापा के पैसे पे ही खाया है। आई डोंट नो हाउ टू अर्न अ सिंगल पेनी, 1 रुपए कैसे कमाना है वो भी मुझे पता नहीं, तो मैं 1 CR क्या खा कमाऊंगा? नहीं। गेटिंग इट? सो ये दोनों जरूरी है। यू मस्ट नो व्हाट टू डू, एट द सेम टाइम यू मस्ट नो हाउ टू डू। क्लियर? दोनों पता होना चाहिए।
both are required. Getting it? Both are required. What would be the priority between these two? अब ये तो पता चल गया कि दोनों जरूरी है. मुझे क्या करना है ये भी मुझे पता चाहिए और मुझे कैसे करना है ये भी मुझे पता चाहिए. अब देखते हैं सबसे पहले क्या चाहिए. सबसे पहले मुझे क्या चाहिए. मुझे what to do पता चाहिए या how to do पता चाहिए. What do you guys think? What should be the priority? सबसे पहले क्या पता होना चाहिए. What to do or how to do? Anyone? क्या पता होना चाहिए सबसे पहले मुझे. Anyone? What to do पता होना चाहिए या how to do पता होना चाहिए. पहली बार, पहली स्टेप, पहला पड़ाव. What to do, very correct. What to do is very correct. You have muted all. Oh, sorry, Sakib. मैं भूल गया यार. वो हमारे दोस्त की वजह से. उसने किसने? कोड़ी है ना. उसने क्या किया था? उसने दंगा किया यार, इसलिए मुझे बंद करना पड़ा. सॉरी. हाँ, so सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए. So what to do, we must know what to do first. उसके बाद हम सीखेंगे how to do. सबसे पहले हम पता करेंगे what to do, मुझे क्या करना है. उसके बाद हम सीखेंगे कैसे करना है. हाँ प्लीज. Someone wanted to say? No? ठीक है. So we got less than 1 minute. So I request everyone, please put your attendance in your chat box. Attendance chat box में put कीजिए. So next lecture में हम देखेंगे what to do and how to do in detail. ये दोनों बातों पे हम फोकस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. जिन्होंने लेक्चर के स्टार्ट में अटेंडेंस दी थी ना, सबसे पहले 5 मिनट में, 10 मिनट में, वो भी अपनी अटेंडेंस दे दे. वो भी जरूरी है क्योंकि उस टाइम रिकॉर्डिंग ऑफ होता है. सबसे पहले एट द स्टार्ट ऑफ लेक्चर रिकॉर्डिंग बंद होता है. तो उस टाइम में चैट बॉक्स में अगर आप अटेंडेंस देंगे तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी. सो दैट इज व्हाई जब मैं बोलूं तभी अटेंडेंस दिया कीजिए. सर आपसे मैंने कल कहा था सर, ये वो रजिस्ट्रेशन के बारे में. हाँ 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 हाँ, वही तो सर, उसमें क्या करना है EWS वाला. सर? वो है ना सर. हाँ सर, EBC वाला सर. वो हाँ, स्टूडेंट की होनी चाहिए कि फादर की होनी चाहिए? नहीं, वो EBC का सर्टिफिकेट